life is never so easy. That has been the story of every woman. Oh, why we are talking about a woman? We can talk about any gender. Hi all, this is Neha Kala. Started from the scratch and now wherever I am, it is just the divine blessing. This is what I say. In 2009, I initiated my career with one organization called Conviction Consulting, which was a sole proprietorship organization. And we ended up to Conviction Business Advisor Private Limited. We specialize in HRD consulting, payroll, staffing, etc. But yes, I am not a satisfied soul. And that could actually bring me where I am now. And I'm sure sky is even not the limit for a person or a restless soul like me. So what I did actually, when I was running a consulting company, it was all settled. Gaining degrees, gaining education was something which was part and parcel of me because I love books. I'm not a bookworm, but still I like reading. I like exploring new things. Yes, reading is just not up to the books. It could be something which is mystery, which is number, anything and everything, which has meaning attached to it. I was reading it and I was gaining my knowledge. God was always kind to me. And that was one of the reasons He was taking me up higher and higher. So all my kudos to whatever I do goes to sign. Then what I did, when I was going through all of it, HRD consulting and everything, and I was doing my MBA, I was learning new approaches, strategies and everything. I was like, why not to do something which is little more exciting? And I could have my NGO called We Welfare Society. I thought God has always been kind to us. He's been graced us all with the numerous kind of achievements and attributes. So why not to share something that we have with the ones who are unprivileged? Somewhere we all lack. हम सब में कमी है. ये बात मेरे जहन में बैठ चुकी थी बिकॉज सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा था which was hitching me back. So I thought of having an NGO called We Welfare Society. With again the graces of Almighty, we support social causes. Yes, we do that with proud feeling. And then as I initially said, I was a restless soul. I got into media. The Red Velvet column came out to be a dream project of mine. The Red Velvet column, I call it TRVC, which specializes in luxury and lifestyle. Initiated with what? 5,000 copies? या सुनने में भी अजीब लगता है कि कोई मैगजीन लॉन्च हुई और सिर्फ 5,000 कॉपीज़ है. पर आज की अगर हम बात करें तो हम 75,000 कॉपीज़ जाते हैं. एग्जैक्टली 57,900 कॉपीज़ हम जाते हैं. उसके साथ 22,000 कॉपीज़ फ्रॉम जनवरी या फरवरी हम प्लाजा प्रीमियम लाउंजेस वर्ल्ड वाइड में जाएंगे. और यही हमारी जो स्टोरी है वो हमारी स्टोरी दी फैक्ट टेलर को है. दी फैक्ट टेलर जो है वो स्पेशलाइज करती है हॉलिस्टिक एंड ऑकल साइंसेस पे. सो अभी तक तो हम ये 3-4 प्रोजेक्ट्स ही कर रहे हैं. उसके साथ 1-2 प्रोजेक्ट्स लाइक नो दी बॉस विच इज़ अ वेब सीरीज ऑन इट्स वे. नेशनल समिट ऑन हॉलिस्टिक साइंसेस एंड वेलनेस 15 दिसंबर को करके हम हटे हैं, जो हम साल में एक ही बार करते हैं. बट येस, हम ह्यूमैनिटी को भी सलाम करते हैं. हर 18 महीने में हमारा एक इवेंट आता है श्री फोर्ट में जिसको कहा जाता है ह्यूमैनिटी एक्सेलेंस अवार्ड. इस साल आने वाला है. So register yourself for any entity that we have. As I was mentioning कि life has really been kind, but kind में भी ना कहीं unkindness साथ में होती है. मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी चीज़ की कमी होती है, बट मैं ये भी नहीं कहूँगी कि किसी की भी लाइफ पूरी होती है. So वो पूरी और ना पूरी होने में एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो हम सब में होता है, जो शायद भगवान हमें देता है ताकि हम अपने करेज को निकाल पाएँ, ताकि हम कुछ कर पाएँ, सो दैट वी कुड नो आवर ओन रियल स्ट्रेंथ. एंड यही मेरी छोटी सी स्टोरी है बचपन से लेकर अब तक. 13th November 1983 को आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली. आई वॉज बॉर्न बाय वेरी वेरी प्राउड पेरेंट्स, मिसेस किरण काला एंड मिस्टर मोहन स्वरूप काला. काला खानदान, घड़ियों का बिजनेस लोगों ने सुना हुआ था. मेरे लिए अपनी पहचान बनाना, एंड स्पेसिफिकली उस घर में लड़की होने के बावजूद, हम 2 बहनें हैं, पहचान बनाना बहुत मुश्किल था. बट ठीक है, मेरी मदर बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड उनकी वजह से आई कुड रियली मैनेज दैट वेल. स्कूलिंग खालसा स्कूल से करी. टिपिकल सरदारों का स्कूल था, वही जर्नी रही. 5th तक करी, बट आई हैड माई अदर एम्स. माई मदर हैड द सेम फॉर मी, सो शी सेंट मी टू ऑक्सफर्ड.
ऑक्सफोर्ड स्कूल से काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई करी। उसके बाद मिरांडा से ग्रेजुएशन करके पैरेलली, बिकॉज मैं टीचर्स के ख़ानदान से आती हूँ, सो 3 years डिग्री फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स भारत नगर से करी। पैरेलली IMT गाज़ियाबाद से दो बार MBA करी। एक बार कुछ करा जब लोगों को और बिजनेस को समझना चाहती थी, और दूसरी बार टिपिकली लोगों को समझना चाहती थी। PhD भी कर डाली, सोचा चलो यार कुछ और भी करते हैं, सो आई हैव डन दैट ऑल्सो। अब क्या बचा है, एक और PhD, और है तो 2 PhD, लोगों को और समझना बाकी है। अभी तक की जर्नी तो इतनी रही है, आगे की देखते हैं क्या होता है। सो अगर अब मैं ये देखूं कि कैसे भगवान काइंड रहा है, अपॉर्चुनिटीज़, या जिसे हम फेलिसिटेशंस या एक्नॉलेजमेंट्स कहते हैं, क्या क्या मिला। बिकॉज अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो एक्नॉलेज भी होती है, देर सवेर बट होती ज़रूर है। सो विथ ऑल ऑफ आई वॉज डूइंग, आई वॉज एक्नॉलेज्ड वेल, more than 217 awards so far in about 3.5 years and many more to come. I guess इतना कहना ही काफ़ी होगा। अगर हम एम की बात करें, हर एक इंसान एक मकसद लेके पैदा होता है। येस, आई ऑल्सो हैव इट। बिजनेस हम सबको चाहिए, पैसा हम सबको चाहिए, नाम हम सबको चाहिए, बट आई हैव वन टारगेट विच इज़ होम फॉर होपलेस। होम फॉर होपलेस जो मेरी NGO मैंने 2010 में शुरू करी थी, उसका एक प्रोजेक्ट है जिस पे आई एम वर्किंग बिहाइंड माई बैक, यस बिहाइंड माई ओन बैक। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें शांति से करनी चाहिए कि ना समझ में आए, बट यस आज इनके कहने पे ये चीज़ सामने आई, क्योंकि अब मुझे लगता है दिस इज़ द करेक्ट टाइम जब मुझे लोगों का सपोर्ट चाहिए। होम फॉर होपलेस इज़ अ प्रोजेक्ट जहाँ पे हम बुज़ुर्गों और अनाथ बच्चों को रखना चाहेंगे। मैं उनको अनाथ नहीं कहूँगी, बिकॉज नो वन इज़ बॉर्न विदाउट अ पेरेंट। वो बच्चे हैं जो अनएक्सेप्टेड होते हैं, या वो माँ बाप हैं जो अनएक्सेप्टेड होते हैं, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग अनएक्सपेक्टेड भी हमारे ही जैसे लोगों से होते हैं। सो माई एम इज़ वेरी सिंपल, टू डू समथिंग अबाउट दैम, विद दैम, फॉर दैम। ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एक बहुत छोटा सा वर्ड है जिसको हम थैंक्स भी कहते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ एक इंसान को थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि माँ बाप ने तो बड़ी सिंपल सी ज़िंदगी दी है, सब कुछ इट वॉज देयर बिफोर आई कुड इवन आस्क फॉर, बट वो एक इंसान जिसने काफ़ी चीज़ें बदली मेरी ज़िंदगी में, मुझे स्ट्रगल दे के। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी स्ट्रगल विच कुड एक्चुअली ब्रिंग इन टुडेज नेहा काला। थैंक यू।